Hello friends, welcome again to my YouTube channel, and today I am going to discuss again some denials interview question and answers. So let's start with the first one. First is, can you bill a patient for timely filing limit denial? So friends, answer is no. You cannot bill the member for timely filing denials because it is the provider responsibility to bill the claim within the timely filing limit to the health insurance company. And if provider is filing the claim after the timely filing limit, so in this condition claim will be write off. It will not bill to the patient. Second question is, what is Medicare appeal timely filing limit? So friends, Medicare appeal timely filing limit is 120 days and Medicare general claim timely filing limit is 1 year. Third one, what is the global period for major surgery? So friends, according to the Medicare, a major surgery perform global period of 90 days and a minor surgery has a global period of 10 days. जब भी फ्रेंड्स ग्लोबल इंक्लूसिव का डिनाइल आता है वहां पर ग्लोबल पीरियड बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है. नेक्स्ट इज कैन बी बिल मॉडिफायर 57 and 25 टुगेदर. सो फ्रेंड्स, for this one we need to understand the difference between 57 modifier and 25 modifier. So 57 modifier is generally for decision for surgery. So the difference is in these two modifiers, 57 is only appended to major procedures, those with the 90-day global period associated with them. Like कोई भी major surgery perform होती है, suppose कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उस केस में, डिलीवरी के केस में, कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, उस केस में 57 मॉडिफायर यूज़ करते हैं. एंड 25 मॉडिफायर इट जनरली यूज विद द E&M services like 99213, 99214 CPT code. So in this case we use 25 modifier. Next one, what is denial code for CO 197? So friends, CO 197 denial code is used for pre-authorization. It means authorization number is missing for the services rendered. And friends, authorization का denial मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो ऑथराइजेशन, नो रेफरल, ये डिनाइल्स आपसे पूछे जाएंगे 100%. नेक्स्ट वन, what is NDC code in medical billing? So friends, NDC code is full form National Drug Codes. It is a 10-digit code, 3-segment identifier which is assigned to all drugs in US commercial distribution. And NDC stands for National Drugs Codes. So sometimes NDC का denial आ जाता है if we are not billing the claim with the appropriate NDC code. So in this case, insurance company deny the claim stating that we need the correct NDC number for the particular CPT code. Like some drugs codes like J3420 are there which is required NDC code. And there are some other examples also for the NDC codes. Next one, what is PR204 means? So friends, PR204 is when this service, equipment, drug is not covered under the patient current plan. Means अगर सर्विसेज पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में PR204 का डिनाइल आता है. नेक्स्ट वन, व्हाट डज नो रेफरल मीन्स? फ्रेंड्स, रेफरल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन केस ऑफ HMO प्लान, member need to contact first PCP, and PCP will provide a referral number. This referral number we need to bill in the claim form to the insurance company. Otherwise we receive the no receipt. Next is, what is the difference between rejection and denial? So friends, denial तब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम पहुंच जाता है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो डिनाइल करती है. रिजेक्शन कब होता है? क्लेम के प्रोसेस होने से पहले.
मीन्स क्लेम कभी प्रोसेस ही नहीं हुआ, उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया। कुछ भी एरर हो सकती है, लाइक बिलिंग एरर हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ एरर, कुछ भी एरर हो सकती है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। सो डेफिनेशन इज डिनाइड क्लेम्स आर क्लेम्स that were received and processed by the payer and deemed unpayable. A rejected claim contains one or more errors found before the claim was processed. Next one, what is recoupment in medical billing? So friends, recoupment is a request for refund when insurance company overpay an account. मीन्स इंश्योरेंस कंपनी किसी भी क्लेम पर ओवर पेमेंट कर देती है, तो उस केस में वो एक रिफंड रिक्वेस्ट रेज करती है कि आपको ओवर पेमेंट कर दिया गया है, आप ओवर पेमेंट आप हमें इंश्योरेंस को वापस कर दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड एज द रिकूपमेंट प्रोसेस। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिकूपमेंट, तो यहाँ पर रीजन बताए गए हैं दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ ए पेशेंट्स अदर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। मीन्स उनको नहीं पता था कि पेशेंट के पास कोई और अदर कवरेज एक्टिव है। सो उस केस में उन्होंने गलत पेमेंट कर दी, सो वो रिकूपमेंट मांगते हैं वापस। अनदर वन इज दे सेड दैट दे पेड द सेम चार्ज मोर देन वंस। मीन्स उन्होंने एक बार से ज़्यादा चार्जेस को पे कर दिया है। और समटाइम्स दे पेड द रोंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रोंग पर्सन। सो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी अपना पेमेंट रिकूप कर लेती है। रिकूप करना मीन्स दे देती है, पेमेंट कर देती है और उसके बाद वापस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट एंड रिकूपमेंट। सो फ्रेंड्स, इफ इंश्योरेंस पेज टू ए क्लेम मोर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट और पे incorrectly, it asks for a refund or adjusts and offsets the payment against the payment of another claim. Now the insurance payment becomes normal as the excess payment had been adjusted off. Offset, overpayments will be recouped by offset. So friends, offset क्या होता है आपको जनरली समझा देता हूँ मैं। ऑफसेट में क्या हुआ, सपोज कीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने किसी पेशेंट के क्लेम पर ओवर पेमेंट कर दिया। सो अब वो क्या करती है, किसी दूसरे क्लेम पर बोल देगी कि हमने ऑफसेट अप्लाइड कर दिया है। इट मीन्स अनदर पेशेंट की अनदर क्लेम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और उस पेमेंट को आपके क्लेम पर एडजस्ट करा देगी। सो जिसको बोलते हैं ऑफसेट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉन कवर्ड सर्विसेज डिनाइल इन मेडिकल बिलिंग। सो फ्रेंड्स, डिनाइल कोड होता है इसका CO96, दैट इज नॉन कवर्ड चार्जेस। दो कंडीशन हो सकती है नॉन कवर्ड में। मीन्स इफ द सर्विसेज इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोवाइडर प्लान और सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर द पेशेंट प्लान। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पेशेंट प्लान से। चेक इफ पेशेंट पॉलिसी कवर्ड दैट पर्टिकुलर प्लान और सर्विसेज। मीन्स पेशेंट की पॉलिसी में वो प्लान पर्टिकुलर सर्विसेज कवर्ड है या नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे दैट प्रीवियसली सेम टाइप ऑफ सर्विसेज आर पेड बाय द सेम इंश्योरेंस। मीन्स जो सर्विस इंश्योरेंस कंपनी डिनाइड कर रही है, कह रही है कि पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं है, वो सेम सर्विसेज प्रीवियस डेट ऑफ सर्विस पर कभी पे हुई है। अगर पे हुई है सो इंश्योरेंस कंपनी नीड टू रिप्रोसेस द क्लेम एंड पे द सेम सर्विसेज अगेन। नेक्स्ट, चेक विद द कोडर दैट द CPT कोड एंड द डायग्नोसिस कोड बिल्ड अप्रोप्रिएट। अब कोडर के साथ चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि जो CPT कोड है, डायग्नोसिस कोड है, वो अप्रोप्रिएट बिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। सब कुछ ठीक होता है सो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है। अदरवाइज सर्विसेज अगर पेशेंट के प्लान में कवर्ड ही नहीं, सो इन दिस केस क्लेम शुड बी बिल्ड टू द पेशेंट। सेकंड सिनेरियो इसी में बनता है कि सर्विसेज प्रोवाइडर के प्लान में कवर्ड नहीं है। सो प्रोवाइडर के प्लान में कवर्ड नहीं है, सो कंफर्म करेंगे कोडिंग टीम के साथ, प्रोसीजर कोड कवर्ड नहीं है, डायग्नोसिस कोड कवर्ड नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंगली उस पर काम करेंगे। और समटाइम्स इन सिनेरियो में कभी कभी बहुत ज़्यादा रेयर केस में एडजस्टमेंट भी हो जाती हैं। मीन्स क्लेम अमाउंट राइट ऑफ हो जाता है।
सो फ्रेंड्स ये था नॉन कवर्ड डिनाइल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज बेनिफिट मैक्स? फ्रेंड्स बेनिफिट मैक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर्विसेज मैक्स हो चुकी हैं, जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो मैक्स हो चुके हैं। अब ये दो टर्म्स में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट और इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट। यूनिट मीन्स कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो 1 ईयर में एक बार पे होती हैं या 2 ईयर्स में एक बार पे होती है। सो अगर विद इन 1 ईयर कोई सर्विस पे हो चुकी है, सो सेकेंड टाइम में उसको जनरली राइट ऑफ कर दिया जाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए बेनिफिट मैक्सिमम इज ए लिमिट ऑन ए कवर्ड सर्विसेज और सप्लाई। ए सर्विस और सप्लाई may be limited by dollar amount, duration or number of visits. Next, what are the 5 common reasons that a claim might be denied for payment? So friends, 5 रीजन यहाँ पर शो किए गए हैं जो बताते हैं कि क्लेम किस किस कंडीशन में पेमेंट के लिए डिनाइड हो जाता है। फर्स्ट वन, प्री ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को प्री ऑथराइजेशन चाहिए बट वो ऑब्टेन नहीं मिली। सेकेंड वन, क्लेम फॉर्म एरर्स। क्लेम फॉर्म मीन्स जब भी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बिल किया जाता है शो उसमें पेशेंट की कोई डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, पेशेंट का कोई डेटा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या डायग्नोसिस कोड, प्रोसीजर कोड्स ये करेक्टली बिल नहीं हुए, सो इस कंडीशन में भी पेमेंट के लिए डिनाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्लेम वाज बिल्ड आफ्टर इंश्योरेंस डेडलाइन, मीन्स क्लेम टाइमली फाइलिंग लिमिट के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बिल किया गया है, उसकी वजह से पेमेंट के लिए डिनाइड कर देती है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट मेडिकल नेसेसिटी। मेडिकल नेसेसिटी के लिए भी कई बार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाइड कर देती है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के केस में भी कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करती। सो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन रीजन थे जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करती है क्लेम पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज डुप्लीकेट डिनाइल इन मेडिकल बिलिंग। सो फ्रेंड्स डुप्लीकेट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि सेम सर्विसेज पहले पे हो चुकी है, सेम प्रोवाइडर को, सेम फैसिलिटी, सेम डेट ऑफ सर्विस एंड सेम सीपीटी कोड, सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इफ एवरीथिंग इज सेम एंड पेड प्रीवियसली, सो इन दिस कंडीशन क्लेम शुड बी राइट ऑफ। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी क्लेम सबमिटेड बाय ए फिजिशियन और प्रोवाइडर for the same service provided to a particular individual on a specific date of service that was included in a previously submitted claim. This does not include corrected claims. Corrected claims friends वो होते हैं जब भी हम ओरिजिनल क्लेम में कोई करेक्शन करने के बाद कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दोबारा रिफाइल करते हैं। उसमें रिसबमिशन कोड क्या होता है? 7। कौन से बॉक्स में होता है? 22। 23 पर क्या होता है? ऑथराइजेशन नंबर। सो फ्रेंड्स ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है CMS 1500 फॉर्म के नाम से। उसमें एक एक बॉक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन से बॉक्स पर क्या अवेलेबल होता है, और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच सर्विसेज आर नॉट कवर्ड बाय द मेडिकेयर। So friends, there are certain services that are not covered by the Medicare, like long-term care, dental care, eye exams related to prescribing glasses, dentures, cosmetic surgery, hearing aids and exams for fitting them, routine foot care. So these are certain services that are not covered by the Medicare. Next, can you have private insurance and Medicare both? Yes,
it is possible to have both Medicare and private insurance. But you may have both if you are covered under an employer provided plan. मीन्स आप एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड प्लान के अंडर कवर हैं तभी आप दोनों इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइक कोबरा और ट्राई केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हु पेज फर्स्ट मेडिकेयर और एम्प्लॉय इंश्योरेंस? सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है. सो इन दिस केस, इफ यू हैव ए ग्रुप हेल्थ प्लान थ्रू एन एम्प्लॉयर, मीन्स अगर आपका कोई भी एम्प्लॉयर कवरेज है और उस एम्प्लॉयर में 20 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपका एम्प्लॉयर कवरेज फर्स्ट पे करेगा एंड मेडिकेयर सेकेंडरी पे करेगा. एंड दूसरा सिनेरियो बनता है मेडिकेयर पेज फर्स्ट फॉर योर हेल्थ केयर बिल्स बिफोर द HIS. मीन्स ग्रुप कवरेज है आपके पास, एम्प्लॉयर कवरेज है 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसके अंदर, सो एम्प्लॉयर कवरेज पहले पे करेगा और जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है वो मेडिकेयर पे करेगा एज ए सेकेंडरी. नाउ व्हाट इज MSP टाइप इन मेडिकल बिलिंग? सो फ्रेंड्स, MSP होता है मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर. मीन्स इन दैट केस व्हेन मेडिकेयर इज द सेकेंडरी एंड any other insurance is paying as the primary. Definition पढ़ते हैं. MSP refer to instances in which Medicare does not have primary responsibility for paying the medical expenses of a Medicare beneficiary. This is because the Medicare beneficiary may be entitled to other coverage which should pay primary health benefits. मीन्स यही कह रहा है कि अगर अदर कवरेज हमारा एज ए प्राइमरी पे कर रहा है, सो मेडिकेयर बिल नॉट बी पे एज द प्राइमरी, मेडिकेयर बिल पे एज द सेकेंडरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MSP टाइप 12 इन मेडिकल बिलिंग? सो फ्रेंड्स, MSP टाइप 12 मीन्स एम्प्लॉयर हैज 20 और मोर एम्प्लॉयज. दिस इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू ए पॉलिसी होल्डर who is actively working with an employer that has 20 or more employees or covered under their working spouse of any age who meets that employee status. Next, so MSP टाइप यूज़ होता है फ्रेंड्स जहाँ पर मेडिकेयर को हम एज ए सेकेंडरी क्लेम बिल करते हैं, सो उस केस में MSP टाइप रिक्वायरमेंट होते हैं. MSP टाइप 12 हुआ, MSP टाइप 41, सो डिफरेंट टाइप के MSP टाइप होते हैं जो ये शो करते हैं कि मेडिकेयर सेकेंडरी क्यों है. नेक्स्ट, व्हाट इज मेडिकेयर एडवांटेज प्लान इन मेडिकल बिलिंग? सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मेडिकेयर के 4 टाइप्स होते हैं. मेडिकेयर पार्ट ए, मेडिकेयर पार्ट बी, मेडिकेयर पार्ट सी एंड मेडिकेयर पार्ट डी. मेडिकेयर पार्ट ए हॉस्पिटल बिलिंग कवर करता है. मेडिकेयर पार्ट बी फिजिशियन बिलिंग कवर करता है. मेडिकेयर पार्ट सी मेडिकेयर एडवांटेज प्लान इसको बोलते हैं. दिस इज ए बंडल बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड समटाइम्स यूजुअली मेडिकेयर ड्रग कोड्स पार्ट डी मेडिकेयर ड्रग कोड्स को कवर करता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एज द मेडिकेयर एडवांटेज प्लान. MA इसको बोलते हैं या पार्ट सी. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी. इसमें पार्ट ए की भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, पार्ट बी की भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं. सो मेडिकेयर एडवांटेज प्लान बहुत अच्छे प्लान होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज CO11 डिनाइल कोड? CO11 friends, if diagnosis code is inconsistent with procedure, so in this case CO11 का डिनाइल आपको मिलेगा. मीन्स जो डायग्नोसिस कोड बिल हुए प्रोसीजर के साथ CPT के साथ दैट आर नॉट वैलिड.
The diagnosis code is the description of the medical condition and it must be relevant and consistent with the procedure or services that were provided to the patient. So friends, obviously जब सीपीटी डायग्नोसिस कोड के साथ डिजीज के साथ मैच ही नहीं करेगा, मींस जो प्रोसीजर दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अगर वो आपके डिजीज के साथ मैच ही नहीं करेगा, सो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल नेवर पे टू द क्लेम. Insurance company will not provide any amount to the provider. They will just deny the claim stating that diagnosis code are inconsistent with the procedure code. So in this case we need to send it to the coding team first. Coding team will suggest, they will review all the medical records, they will check all the patient history, they will check all the previous history, and then they will suggest the appropriate diagnosis code. And in this case we need to send the corrected claim to the insurance company with the correct diagnosis code. And इसी में एक अलग सिनेरियो बनता है, if coding team is saying that diagnosis code is not inconsistent, diagnosis code build with the procedure code are correct, मीन्स जो डायग्नोसिस कोड बिल्ड हुए हैं प्रोसीजर के साथ वो करेक्ट है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपील फाइल कर देंगे. कब? अगर हम अपील टाइमली फाइलिंग लिमिट में हैं. सो ये भी सिनेरियो बन जाता है कभी कभी, बिकॉज अगर सारी सीपीटी, सारी डायग्नोसिस कोड करेक्टली बिल हुए हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी डिनाइंग दैट, स्टेटिंग दैट it is not valid, so in this case we will simply send an appeal. Next, what do you mean by patient cannot be identified denial in medical billing? So friends, PR31 इसका कोड है. PR means patient responsibility, PR होता है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, OA होता है अदर एडजस्टमेंट, CO होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशंस. ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है इंटरव्यू में. सो फ्रेंड्स, PR31 मीन्स पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज आर इंश्योर्ड. ये कब होता है? दिस कैन बी कॉज्ड बाय समथिंग एज सिंपल एज ए टाइपो इन द इंश्योरेंस आईडी, डेट ऑफ बर्थ और नेम. मीन्स इंश्योरेंस आईडी गलत भेज दी, डेट ऑफ गलत भेज दिया, नेम गलत भेज दिया. सो उस कंडीशन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती, सो वो डिनाइड कर देते हैं कि पेशेंट हमारा पेशेंट नहीं है. सो उस केस में हमें जनरली क्या करना होता है, अगर हमारे पास डिनाइल आ रहा है पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड का, सो सिंपली चेक द एलिजिबिलिटी ऑन द वेबसाइट, मैच ऑल इन्फॉर्मेशन विद द क्लेम, एंड इफ देयर इज एनी एरर सो करेक्ट इट एंड सेंड द क्लेम अगेन टू द इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, इट कैन ऑल्सो मीन दैट द इंश्योर्ड इंश्योरेंस इज नो लॉन्गर वैलिड, in which case the patient would be responsible for the charges. Next question is, what is ANSI full form in medical billing? So friends, ANSI होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. Codes are used to explain the adjudication system of a claim and or the CMS approved. CMS होता है Center for Medicare and Medicaid Services. जो इंश्योरेंस गाइडलाइन काम करती है वो CMS गाइडलाइन पर काम करती है. नेक्स्ट, ग्लोबल पीरियड. व्हाट इज ग्लोबल पीरियड इन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस? सो फ्रेंड्स, ग्लोबल पीरियड पूछा जाता है ग्लोबल इंक्लूसिव डिनाइल के केस में. जहाँ भी हमें ग्लोबल इंक्लूसिव का डिनाइल मिलता है वहाँ पर ग्लोबल पीरियड जनरली मेंशन करना होता है. सो ग्लोबल पीरियड इज ए पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग विद ए सर्जिकल प्रोसीजर एंड एंडिंग सम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द प्रोसीजर. मीन्स सर्जरी परफॉर्म हुई, उसके बाद 90 डेज का ग्लोबल पीरियड दे दिया, बोला 90 डेज के अंदर जितनी भी इंक्वायरी होंगी वो इस सर्जरी CPT के अंदर इंक्लूसिव होंगी. मीन्स उस पर
कोई भी पेमेंट नहीं होगी। सो दैट इज known as global inclusive. Many surgeries have a follow-up period during which charges for normal post-operative care are bundled into the global surgery fee. So friends, ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स शेयर किए हुए हैं regarding medical billing process and EOB, COB related questions. The terms we are using in the medical billing process that are already discussed in my all the last videos. So you can watch that videos also for the more information. And that's all for today. So friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।